پروفیسر صاحب ایک جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب طلاق کے معاملات آتے ہیں تو کتنی طلاقیں جو ہیں وہ مانی جاتی ہیں آپ کے مسلک میں کہ جی ایک ساتھ طلاق ہو جاتی ہے یا ایک ایک کر کے ہوتی ہے یا اس میں کوئی گیپ ہوتا ہے کہ ایک طلاق ہو گئی پھر دوسری ہو گئی پھر تیسری ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ سیپریشن اب کنفرم ہے؟ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. جو طریقہ قرآن مجید نے طلاق کا بتایا ہے اگر اس کے مطابق طلاق دی جائے یہ سب کے لیے متفق ہے وہ طلاق ہو جاتے ہیں. فقہاء نے دو قسم کی طلاق سنہ اور طلاق بدعہ. ٹھیک ہے. طلاق سنہ سب پر متفق سب لوگ متفق ہے طلاق اس طرح ہو جائے. اچھا وہ اگر اکیلے میں بھی دیتا ہے جیسے وہ طریقہ ہے جو ایک طلاق دے گا اس کے بعد اس کی عدت ہوگی اور اس کے بعد دوسری طلاق دے گا. طلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ. جب ہم طلاق دیں گے عورت کو تو آپ عدت کی دیں گے ایک طلاق دیں گے. اچھا. اور اس طلاق میں ولا تخرجوہن من بیوتہن آپ عورت کو اس کے گھر سے نہیں نکالیں گے. ولا یخرجن خود ہی جائیں گی. آپ نے ایک طلاق دی عورت کو اپنی بیوی کو وہ آپ کے پاس ہی رہے گی 3 ماہ تک. لیکن طلاق ہو گئی. طلاق ہے لیکن وہ جائے گی نہیں. تو طلاق رجعی اسے بولتے طلاق رجعی. اس میں رجوع کا حق ہے تو وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. یعنی وہ رجوع نہیں اس کا حق ہے. اس دوران 3 ماہ کے اندر شوہر کسی وقت بھی رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی طلاق سے رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب عدت ختم ہوگی پھر جو ہوگا اگر اس نے وہ بھی عدت جو ہے 3 ماہ ہے اگر اس کے اندر رجوع کر لیا تو واپس آ جائے گی بیوی. اگر نہیں کیا پھر نکاح تجدید ہو. تقریباً 9 مہینے کا پروسیس. جیسے کر دیجیے. تو یہ اسلام کا جو سنت طلاق سننا ہے اس میں تو سب متفق ہے. اچھا اگر ایک ساتھ تینوں طلاقیں دے یہ مسئلہ اسے کہ طلاق بدعہ اسے کہ طلاق بدعہ. ہاں ایک دم 3 طلاقیں دے دینا. اب اس میں اختلاف ہے صحابہ کا بھی اختلاف تھا آپس میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی. اچھا. کانت ثلاثۃ طلقۃ واحدہ ایک طلاق شمار کی جاتی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں دیکھا کہ لوگوں پر طلاق دے دیتے ہیں بہت عام ہو گیا ہے مسئلہ. 3 طلاقیں دی رجوع کر لیے تو حضرت اس کا اگر یہ نہیں چھوڑیں گے کان فی ما استعجلوا فی الامر کان لهم انا اور اس میں اللہ نے ان کو مہلت دی تھی اور اس میں جلدی کی تو ہم دینا ہم اس کو نافذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت نے اس کو وہ طلاق رجعی جو اس کو نہیں کہا کہ اس میں کوئی ہے وہ بس یہ ایک ایسا معاشرتی مسئلہ پیدا ہو گیا آپ نے اس کو نافذ کر دیا. لیکن یہ کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اگر 3 مجلس طلاقیں ایک ہی مجلس میں ہوگی ایک شمار کی جائے گی. اسی حضرت طاؤس اور حضرت ابی صحابہ کی جو حضرت ابن عباس سے روایت کی انہوں نے تو یہ ہمارے جو مسلک ہے ہم جو ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. ایک شمار ہے. اس کے بعد جو اس آدمی کو رجوع کا حق ہے. جیسے حضرت رسول اکرم کے زمانے میں رکانہ نے نبی صحابہ تھے رکانہ بن عبد العزیز اس نے طلاق دی اور جب 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے بڑے افسردہ ہوئے. یا رسول اللہ میں نے طلاق دی ہے اس میں تو میں کیا کروں. آپ فرمایا کیسے طلاق دی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. فرمایا میں نے 3 طلاقیں ایک دم کہہ دی. فرمایا ارجع اگر تو رجوع کرنا چاہتے کرینا واحدہ یہ ایک ہی ہے. تو ہمارے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس میں بڑی تفصیل بحث ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پہ کتاب اغاثۃ اللحفان میں بڑی اچھی بحث کی ہے. اس نے دونوں طرف کی یعنی 2 دلائل دی ہے. وہ لوگ بھی جو 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرتے اور وہ لوگ جو 3 طلاقوں کو نافذ کر دیتے ان دونوں کی دلائل اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت ابوبکر الاسماعیلی نے ایک مسند عمر لکھی کتاب جس میں وہ روایات جمع کی ہے جو حضرت عمر سے روایت ہے. انہوں نے ذکر کیا اس کا کہ آخر عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت ندامت کرتے تھے.
कार कसीर निज़ाम बहुत नाबकार से मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आप इस ये पर- कहते हैं कि जी, जी। अगर कोई तो एक हमारा साथ- मसलक ये है, हमारी दलील ये है कि एक मजलिस की 3 तलाक एक शुमार की जाए। एक शुमार की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। फैसल भाई मेरा सवाल जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से है। जी वो ये सवाल है कि अगर किसी ने जो है 6 साल पहले गुस्से के अंदर एक बार तलाक का लफ्ज जबान पे ले आया और वो फिर 6 साल बाद दोबारा जो है वो सवाल मकसद दोबारा तलाक का लफ्ज कह दिया, तो क्या 6 साल पहले बोली गई तलाक उसमें काउंट होगी? अच्छा, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिएगा, इन 6 सालों में रुजू किया या आप साथ रहे या? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, 6 साल में वो साथ ही हैं। अच्छा, साथ ही हैं, जी जी ठीक है। पहली तलाक के बाद रुजू कर लिया। हाँ, पहली तलाक के बाद रुजू कर लिया था उन्होंने। ठीक है, चले हम पहले अपने उसको नहीं, हम अब मेरे ख्याल से वो जो अच्छा, मैं भी वो मिसअंडरस्टैंड कर गया था सुभान भाई। आप ब्रेक में मुझे कह रहे थे वो जिस तरह से बात हुई कि पहली तलाक के बाद 3 महीने, दूसरे, तो मैंने कहा तो 9 महीने हो गए। तो हालांकि वो इतना लंबा पीरियड तो नहीं है और प्रोसेस कुछ और है। बट जो प्रोफेसर साहब ने कहा, आपका क्या उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर फैसल भाई ये बात है कि 3 तलाक़ें, जैसे पहले उन्होंने ये बात कही है कि एक है तलाक़ का ahsan तरीका, एक है हसन तरीका और एक है बिदई तरीका। ahsan तरीका ये है कि एक दफ़ा तलाक़ 2 हालत तौर में और बीवी से मुकाता कर लो ताकि इद्दत पूरी हो जाए, बीवी हराम हो जाए। दूसरा तरीका ये है जो हसन है कि हर तौर में, हर यानी पाकी के दिनों में एक एक तलाक, 3 महीनों में 3 तलाक़ें देकर बीवी को फारिग कर दो। ठीक है। और तीसरा तरीका है बिदई, यानी कि गलत तरीका है, अल्लाह रसूल को नापसंद तरीका है। वो क्या है कि आप इकट्ठे 3 तलाक़ें दे दो। ठीक है। अब तलाक़ें तीनों तरह से 3 हो जाती हैं, यानी बीवी आराम, पहली दफ़ा से बीवी आराम होगी, वो बायन मुगल्लज़ नहीं होगी, लेकिन पहली दफ़ा जो आसान तरीका है उससे भी बीवी आराम, जो दूसरा तरीका है उससे भी बीवी आराम। और अगर इकट्ठी एक वक्त उसने 3 तलाक़ें दी तो भी तीनों तलाक़ें वाक़या हो जाएंगी और बीवी हराम होगी। लेकिन ये तरीका नापसंदीदा है। मैं समझाऊं यूं कि एक खाने का तरीका बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दाएं हाथ से आराम से बैठ के चबा के खाओ। अब ये खाओगे साथ सवाब भी मिलेगा, सुन्नत तरीका भी है और पेट भी भरेगा। और अगर आपने ये रोज़ा रखा है तो इफ्तारी भी हो जाएगी, और अगर दरमियाने रोज़ा खाएंगे तो रोज़ा टूट भी जाएगा। और अगर कसम खाइए कि मैं खाऊंगा नहीं और इस तरह से खाया तो वो कसम भी टूट जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आपके सामने खाने को डाल दिया जाए और जानवरों की तरह बंदा मुंह डाल के खाए, तो अब उस खाने से भी पेट भर जाएगा। अगर कसम उठाइए तो कसम टूट जाएगी, अगर रोज़ा रखा है तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन पहला तरीका इंसानों वाला है, सुन्नत तरीका है। दूसरा तरीका पेट भर जाएगा, लेकिन ये खिलाफ शरीयत तरीका है। इसी तरह अगर पहले 2 तरीकों से तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी, इसको गुनाह नहीं होगा। ये जो दूसरा तरीका है कि इकट्ठी 3 तलाकें देगा, ये तलाक बिदई है। तलाक तो हो जाएगी, तीनों तलाकें वाक़या होंगी, लेकिन इन तीनों तलाकों के वाक़या होने पर इसको साथ साथ गुनाह भी होगा कि तूने गलत तरीका इख्तियार किया। अब जो ये कहा गया, यहाँ प्रोफेसर साहब ने ये कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत रुकाना के हवाले से उन्होंने हदीस पेश की है कि उस तलाक को जो उन्होंने 3 दी थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक ही शुमार किया। और उन्होंने ये कहा ये मसला इख्तिलाफी है, हर चंद के इस मसले में हल्का फुल्का इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन इस पर इजमा है। इसके बाद जमहूर सहाबा, ताबईन, तब ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये तमाम आइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं। तो इससे ये कि ये इजमा है कि 3 तलाक़ें 3 ही वाक़या होती हैं। और ये बड़ी हिम्मत और जुर्रत है कि हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में 1 होती थी, रसूलुल्लाह के दौर में 1 होती थी, हज़रत उमर फारूक ने 1 को 3 कर दिया। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? रसूल खुदा की सुन्नत को बदल दिया हज़रत उमर ने। हज़रत उमर ने इसको चेंज कर दिया और फिर कहा गया कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने किया। मैं चैलेंज से कहता हूं किसी हदीस सही के अंदर ये मौजूद नहीं है कि हज़रत अली ने अपने दौर खिलाफत में 3 तलाकों को एक शुमार किया हो। अब मैं आ रहा हूं हदीस रुकाना, इस पे तो मैं इस तरफ जाऊंगा। मैं जल्दी
जो मैंने ये कहा है प्रोफेसर साहब का अली माइक और साहब। हसन मेरी बात मसूद को का पूरा मौका होने दिया था। दें, जी जी मेरी बात को जी पूरा जी होने दें, कर- उसके कर- बाद आपका बात कर ले बात देखें ना दरमियान में नहीं। जी, जी, जी। हदीस रुकाना उन्होंने जो पेश की है, अब ये हदीस रुकाना मुस्लिम शरीफ के हवाले से उन्होंने पेश की है। हालांकि ये जो मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस रुकाना है, ये जुरैज से रिवायत है और ये हदीस रुकाना मजहूल रावियों से मरवी है। और इसकी सही तशरीह अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस रुकाना जो हजरत रुकाना के पोते बयान करते हैं, और उन्होंने वहां पर बयान किया है कि मेरे दादा ने रसूलुल्लाह के जमाने में अपनी बीवी को तलाक बत्ता दी थी, और अल्लाह के नबी ने उनसे कसम दे के पूछा कि क्या तेरा इससे क्या इरादा था, तो उन्हें अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा एक तलाक देने का इरादा था। तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, जो तूने कसम खाई है मैं उसको बरकरार रखता हूं। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं वो जो जिसमें 3 तलाकों के लफ्ज हैं, वो रिवायत मजहूल रावी बयान कर रहे हैं और ये रिवायत उनका पोता बयान कर रहे हैं, और घर वालों को ज्यादा पता है। और फिर अगली बात यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से जिन्होंने बयान की है कि उन्होंने बयान किया कि हुजूर के दौर में एक होती थी, अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक होती थी, हजरत उमर के दौर में जनाब उसको उन्होंने 3 शुमार किया। हैरानगी की बात है कि अबू दाऊद शरीफ में, निसाई शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद जिस हदीस को के रावी को बयान किया जा रहा है, उस हदीस के रावी से आकर हजरत मुजाहिद, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जनाब मालिक बिन हारिस और हजरत अमर बिन दीनार और कई दीगर ताबईन अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि आपके पास जब एक औरत आई, उसने आकर कहा मुझे 3 तलाकें दी हैं मेरे शोहर ने एक मजलिस में, तो आपने उसको तंबी की, आपने फरमाया कि ये औरत नहीं आई, मर्द है, उसने कहा जी मैंने बीवी को 3 तलाकें दी हैं। तो कोई मेरे लिए हल, आपने गुस्से में आकर फरमाया कि तुम पहले अल्लाह की हदों को तोड़ते हो, इकट्ठी 3 तलाकें देते हो, और फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हो। तूने या अल्लाह से खौफ नहीं किया, एक मजलिस में तूने 3 दिए, जा तेरी 3 हो गई। और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है इन्हीं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जिस वक्त सवाल किया एक शख्स ने कि मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक दी, एक जगह बैठकर 100 तलाक दी मैंने अपनी बीवी को, आप इस बारे में इरशाद फरमाइए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तेरी बीवी को 3 तलाकें उनमें से हो गई, बाकी 97 तलाकों के साथ तूने अल्लाह की शरीयत के साथ मजाक उड़ाया। अब यहां से इसके अलावा पूरी उम्मत सदियों से इजमा है, इसको जिक्र किए कई मुहद्दिसीन ने, इमाम नववी ने, दीगर ने, कि 3 तलाकें 3 ही होती हैं। अब मैं फिर यही सवाल करता हूं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल खुदा की शरीयत के खिलाफ, अबू बकर सिद्दीक के तरीके के खिलाफ फैसला कर रहे थे, अली भी खामोश हैं, सहाबा भी खामोश हैं, और सारी उम्मत उस पे अमल कर रही है। ये कैसा, ये जुर्रत है इस हवाले से? ये उनका एक मौक़िफ़ है, आपका ये मौक़िफ़ लिहाजा है, हम अपना आपने अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा दिया। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।